وقت کی اہم ترین ضرورت الیکشن نہیں بلکہ اپنی پہچان کو بچانا، جو نوجوان نسل کے لیے ایک چیلنج ہے جس کے لیے ہمیں بندوق یا پتھر نہیں اٹھانے ہیں بلکہ اس کی مذمت کرنی ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی۔ اپنی پارٹی جموں کشمیر میں امن، خوشحالی اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پارٹی عوام کو معاشی اور سیاسی طور پر بااختیار بنانے کے لیے کر رہی ہے کام۔ سید محمد الطاف بخاری۔ اور کپوارہ میں طلباء کو مبینہ جسمانی سزا دینے پر 2 اساتذہ کو کیا گیا معطل۔ ڈی سی کپوارہ نے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے کر مقررہ وقت میں تحقیقات کا دیا حکم۔ آداب، السلام علیکم ناظرین، آپ گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں اور اس وقت دوپہر کے 4 بج رہے ہیں اور اس وقت آپ پروگرام اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں اور اسپیشل رپورٹ کا آج کا تازہ شمارہ لے کر آپ کا میزبان ساحل اقبال ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اسپیشل رپورٹ میں آج بھی مختلف خبریں آیا جاتی ہیں اور آج ہم سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مسئلہ مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ وہیں کپواڑہ سے بھی ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ 2 اساتذہ کو بھی معطل کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے 2 بچوں کو جو ہے کارپورل پنشمنٹ دی ہے، اس کے چلتے انہیں معطل کیا گیا ہے۔ یہ ساری جو خبریں ہیں ان کی تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے، لیکن پروگرام کا آغاز اس بڑی خبر سے۔ آپ کو بتا دیں کہ آج پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے سری نگر میں ایک جو ورکرز کی جو جوائننگ تھی اس کے دوران انہوں نے خطاب کرتے ہوئے جو ہے کہا ہے کہ پی ڈی پی جو صدر ہیں محبوبہ مفتی، انہوں نے اس حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جو آنے والے وقت میں جو ہے وقت کی اہم ترین ضرورت جو ہے وہ الیکشنز نہیں ہے بلکہ اپنی پہچان کو بچانا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک چیلنج، انہوں نے کہا کہ یہ نوجوانوں کے لیے ایک چیلنج ہے اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کرنا، یعنی جو نئے لوگ پی ڈی پی میں شامل ہو رہے ہیں ان کا پی ڈی پی میں یعنی اپنی اس پارٹی میں جو ہے شمولیت اختیار کرنا آگ سے گزرنے کے برابر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو آنے والا وقت ہے وہ نوجوانوں کے لیے چیلنج ہے اور انہیں خوشی ہوئی کہ نوجوان جو ہے ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا آگ سے گزرنے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کی اہم ترین ضرورت اس وقت الیکشنز نہیں بلکہ اپنی پہچان کو بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں آئے دنوں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نئے قانون دیکھنے کو مل رہے ہیں جس سے جموں کشمیر کی عوام کے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ نہ صرف ہمارے تشخص کو ختم کیا جائے بلکہ ہمارا وجود بھی مٹایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک چیلنج ہے اور اس کے لیے جو ہے نوجوان نسل کو بندوق یا پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی مذمت کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ وقت کی اہم ترین ضرورت اس وقت الیکشنز نہیں بلکہ اس وقت اپنی پہچان کو بچانا ہے کیونکہ نئے قانون جو آ رہے ہیں اس کے چلتے یہاں کی جو پہچان ہے، یہاں کا جو تمدن ہے، تشخص ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کہہ رہی ہیں۔ اس حوالے سے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی مزید کیا کچھ کہتی ہیں، آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ باقی کیا کران کوٹا کم کران تمیک انداز سان ورکران گھا پنہ جائے مگر ونکس ضرورت مقابل کرنے الیکشن یوت مقصد الیکشن گھن پگہ وار کار تھی دیو سپورٹ یہ ہیٚکہِ زیٖنِتھ تمہِ ساتہٕ انشاءاللہ مگر الیکشن کھۄتہٕ چھُ ونکس اسہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ امتحان أسۍ چھِ بڑٕ مشکل حالاتن منٛز ونکس گرفت گٔمٕتۍ پکڑ دکڑ چھِ نوجوانن ہٕنٛز چھاپہٕ چھِ یِوان تراونہٕ کُنہِ نتہٕ کُنہِ طریقہٕ چھِ یِوان ییٚتِکۍ لُکھ تنگ کرنہٕ کوٗشش چھِ یِوان کرنہٕ تِم قانوٗن چھِ یِوان یور اننہٕ یِمو قانوٗنو سۭتۍ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اسہِ طاقت چھُ کم گژھان سٲنۍ اختیارات چھِ کم گژھان یِمنٕے چیٖزن چھُ اسہِ مُقابل کرُن کوٗشش چھِ یِہٕنٛز کہ نہ صرف گوٚژھ سون تشخص مٹاوُن بلکہ وجوٗد تہِ پگہہ گژھِ دپُن ہے سُہ کٲشُر کیُتھ اوس آسان سُہ پھیرن کیُتھ اوس لاگان
سہ زبان کس بولان اس عادت گومت گھرن مز کشر بولان کی بچن ست اردو تو انگریزی بولان ساروی کھت بڑ نشانی گوڑ سن زبان اتھے کن ونکس خاص کر جوانن سے گزارش کران کہ تمہد مستقبل تھی سوری برو کن پکناؤن تھی ساروی کھت بڑ آزمائش اس کوڑ پن وقت مگر آزمائش تہند خاطر بڑا مشکل ات آزمائش مز ہیکو تھی کن چھن تلن بندوق چھن تلن زیادتی چھن کریں کی مگر دپان انگریز پہ ریزسٹنس اردو کچھ ونان مزاحمت یعنی مقابل اسے دپان کہ اس ثر پارٹی مز واریاہ لیڈر اس پتہ سہ ٹھیک گوا کن غلط گو مگر جوانن خاطر گو سہ ٹھیک جائے درائے نیا دکان خاطر درائے جائے کہ ناظرین کرام جہاں بات ہم پی ڈی پی کی کر رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ کل جس ایک طرف پی ڈی پی کو عبدالحق خان جو ہیں ان کے جانے سے جہاں ایک طرف جھٹکا ملا ہے وہیں دوسری جانب نوجوان جو ہیں وہ پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اور اس کے تحت آج بھی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں جو ہے شمولیت ہوئی ہے لوگوں کی نئی شمولیت ہوئی ہے. آپ کو بتا دیں کہ جو ایڈوکیٹ ثریا اکبر ماغامی ہیں جو کہ بیروا سے ہیں انہوں نے آج سینئر جو پارٹی کارکنان ہیں ان کے ساتھ آج پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. آپ کو بتا دیں کہ بڑگام کے ماغام علاقے کی رہنے والی ایڈوکیٹ ثریا اکبر ماغامی حلقہ انتخاب بیروا نے آج پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی موجودگی میں ان کی سرکاری رہائش گاہ گبکار میں درجنوں سینئر سیاسی کارکنوں کے ساتھ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. اور اسی پر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی جو ہے ابھی بات کر رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کا پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا ایک خوش آئند بات ہے کیونکہ نوجوان ہی آنے والا مستقبل ہے اور جو درپیش مسائل اس وقت جموں کشمیر کی عوام کو ہے ان کا ازالہ جو ہے وہ نوجوان نسل کو ہی کرنا ہے. اس حوالے سے جو ایڈوکیٹ ثریا اکبر ماغامی ہیں انہوں نے اپنے تاثرات جو ہے ان کا اظہار کرتے ہوئے مزید کیا کچھ کہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. Women's Wing Bargaum versus Municipal Councillor Margam. مگر سو عزت سو سپورٹ اس پارٹی نش ایکسپیکٹ کران سو ملیو نہ تک میں کیا سو وفا ملیو نہ میں تک کیا مگر ونکن چھس محبوبہ مفتی جی گزارش کران کہ میانہ لوکن چھ سٹھا امید تسی میں چھ سٹھا مطلب پور امید کہ سن لوگ تہ کرن تسی وفا بہت کر تسی وفا تو یہ پارٹی تہ کر اسی وفا باقی چھس بہ بے تہذ شکر گزار کہ مطلب میں کور یہ پارٹی جوائن انشاءاللہ اس کرو اکٹھے ساری ملت پی ڈی پی کے بعد اب جموں کشمیر اپنی پارٹی کی بات کرتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی نے آج سری نگر میں ایک پارٹی کنونشن کا جو ہے اہتمام کیا اور اس حوالے سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد یعنی پارٹی کارکن جو ہیں ان کی ایک بڑی تعداد اس کنونشن میں موجود رہی. اپنی پارٹی نے آج ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا جس میں لال چوک حلقے کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. آپ کو بتا دیں کہ کنونشن کا اہتمام پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں کیا گیا. اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے کہا کہ اپنی پارٹی جموں کشمیر میں امن خوشحالی اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی عوام کو معاشی اور سیاسی طور پر بااختیار بنانے کے لیے کام کر رہی ہے. انہوں نے سیاسی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ 12 نومبر کو ہونے والی جو مطلوبہ سری نگر میں ریلی ہونے والی ہے اس کو کامیاب بنانے میں پورا رول ادا کریں. اس حوالے سے سید محمد الطاف بخاری مزید کیا کچھ کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. اب ہم یہ کوشش کریں گے آج بھی ہمارے بچوں کو تھانوں میں لیا جاتا ہے آج بھی ہمارے بچوں کو بزرگوں کو جیلوں میں لیا جاتا ہے. انشاءاللہ 12 تاریخ کو جو جلسہ ہو رہا ہے اس کے بعد ایک ٹیم بنے گی پارٹی کی ٹیم بنے گی جس میں آپ سب لوگوں کو بھی یہ کام کرنا ہوگا کہ جہاں جہاں جس کا بچہ بند ہے ہم ڈیٹیلز کلیکٹ کریں گے. یہاں بند ہے باہر بند ہے پہلے ان کے گھروں میں یہاں جائیں گے جیلوں میں جائیں گے اس کے بعد ایک ایک کا فالو کریں گے. میں نہیں کہوں گا سب کچھ شروعات سے
मैं ये नहीं कहूँगा कि उस को पगस्तरी प्राणी, लेकिन इनको एक नया मौका देना है जिंदा रहने के लिए। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को इनको थानों में नहीं बंद किया जा सकता है। किसी ने 2005 में कुछ किया है, उसको आज पकड़ के ले जा रहे हैं। ये सब चीज़ें बंद करनी है। तम खतर शायद जिम्मेवारी मलिस माज पे जिम्मेवारी, महल कमेटियन पे जिम्मेवारी दी, महल कमेटी रोजन जिम्मेवार, मस्जिद कमेटी रोजन जिम्मेवार, मगर जितिन पे रोला तो वो ड्रग्स जहाज कर ड्रग्स खिलाफ सह तरी गि पन महल सिद्ध करो, ये पन घर सिद्ध कर पत कर पन महल सिद्ध। बंदूक से अब हम नहीं मारेंगे, क्यों? बंदूक की अहमियत या बंदूक का खसारा हमने देख लिया, लेकिन अगर हम मरेंगे हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आज कुपवाड़ा में एक पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया है और इसमें भी जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद शामिल रही और इसके साथ साथ जो नासिर असलम वानी हैं वो भी उन्होंने भी इसमें शमूलियत की। आपको बता दें कि कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने एक कन्वेंशन का एहतमाम किया और उनके हमरा कैसर जमशेद लोन के अलावा डीडीसी मेंबर सनाउल्लाह खान भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में कोई भी काम नहीं किया है और उन्होंने कहा कि सिर्फ लोगों को धोखे में रखा है, यानी बीजेपी ने लोगों को सिर्फ धोखे में रखा है, ये नासिर असलम वानी का कहना है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत में अफसरशाही का राज चल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को बहुत सारी मुश्किलात हैं, जैसे बिजली, पानी, हेल्थ और सड़क, जिनमें जो है काबिल जिक्र है। और उन्होंने कहा कि इस हवाले से उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अब हर इलाके में जाकर लोगों के मसाइल सुनेगी और इसे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेगी और उनका अजाला जो है ढूंढने की तलाश करेगी। और उन्होंने इस हवाले से कहा है कि इलेक्शन, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस जो हैं वो ज़रूरी हैं, तब जाकर लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। और नासिर असलम वानी इस हवाले से मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। बीजेपी अपनी गलत फहमियों में रहे हुए हैं, वो उसको कहते हैं अपने आइवरी टावर में वो बैठे हुए हैं, उनको लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा ही नहीं है। पहले तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो लोगों में जाएं, ऐसे जो ये ड्रामे करके जो वो फंक्शंस करते हैं उसी हद तक महदूद ना रखें, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा झंझोड़ के लोगों तक भेजिए। लोग बहुत तकलीफ में, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं, बहुत हद दर्जे की मुश्किलात है। सबसे बड़ी रोज़गार की यहाँ दिक्कत है और बाकी तो अगर आप देखें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात है, सब चीज़ों की मुश्किलात, बिजली कहीं नहीं है, अब तो ये हद है कि पानी की भी दिक्कत आने लगी है, कोई सिस्टम ही नहीं है और कोई दिखता भी नहीं। हॉस्पिटल की बुरी हालत है, जो मैंने सुना मैक्सिमम लोगों को रेफरल्स हैं श्रीनगर में, गरीब लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है श्रीनगर पेशेंट्स लेके। उसके बगैर चारा क्या है, आप मुझे बताइए, उसके बगैर चारा क्या है? इसकी जोग्राफिया भी इस किस्म की है, इस जो पहले रियासत थी अब यूनियन टेरिटरी है, इसकी जोग्राफिया ऐसी है कि जब तक लोकल नुमाइंदे ना हो आप लोगों तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आजकल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल बहस हो गई है, लोगों की मुश्किलात को सुन भी नहीं रही है। हम लोगों ने अब ये पहल की है कि हम जाके कम से कम उनकी मुश्किलात को निशानदेही करके उन क्वार्टर्स तक पहुंचा तो दें, क्योंकि हल करना तो हमारे हद इख्तियार में नहीं है। चलना ज़िक्र कुपवाड़ा की बात हो रही है तो आपको बता दें कि कुपवाड़ा से ही एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि कुपवाड़ा में एक जो हादसा है वो पेश आया है, या यूं कहें कि एक वाकया पेश आया है जहां पर उस्ताद जो हैं उनको मुअत्तल किया गया है। 2 उस्तादों को मुअत्तल किया गया है और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने 3 बच्चों को जो है उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट दी है, यानी जिस्मानी जो सज़ा है, यानी मुबैना जिस्मानी सज़ा दी है, जिसके चलते अब हुकाम की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है और इस ऑर्डर में उनको जो है मुअत्तल कर दिया गया है, दोनों उस्तादों को। खबर की तफसील आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में हुकाम ने एक सरकारी स्कूल के 2 उस्तातिज़ा को उनके स्कूल में 3 तालिब इल्मों को मुबैना तौर पर जिस्मानी सजा देने पर मुअत्तल कर दिया है। एक हुक्मनामे के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने जो है करालपुरा जोन के अपर प्राइमरी स्कूल जो है उसमें
दो उसातिज़ा को 3 तलबे इल्मों को मुबैना जिस्मानी सजा से मुतल्लक शिकायत पर मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। हुक्म के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने भी इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी करने और 10 दिन के अंदर हकायक पर मबनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 रुकनी जो कमेटी है वो तश्कील दी है। और इस हवाले से आपको बता दें कि मजीद तफसीलात हमारे साथ हमारे नुमाइंदे साहिल शमीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुपवारा से, जो इस हवाले से हमें मजीद तफसीलात जो है फराहम करेंगे। साहिल, आपसे जानना चाहेंगे साहिल शमीम के इस हवाले से मजीद क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या कुछ तब से हुआ है इसके हवाले से? साहिल इकबाल, जिस तरह से कल जो है एक ऑर्डर जो है कल शाम को इजरा किया गया है डिप्टी कमिश्नर कुपवारा की तरफ से, जो है एक ऑर्डर आया है कि वहाँ उसमें जो है क्लियर लिखा है कि ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये यहाँ पर जो है एक इलाका है पुरनमन इलाका, हालांकि पहाड़ी इलाका है वो, तो वहाँ पर जो है 2 उस्तादों ने कुछ बच्चों के साथ ज्यादती की है। उस मामले में को लेकर जो है जब वालिदैन को पता चला है, हालांकि मारपीट का इल्जाम उन पे है, तो जब वालिदैन को पता चला वहाँ के वालिदैन जो है डिप्टी कमिश्नर कुपवारा के पास आए तो उन्होंने जो अपनी शिकायत वहाँ पर दर्ज की, तो उस बिना पे जो है डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने फिलहाल जो है उनको मुअत्तल किया गया है। हालांकि इसमें 2 उसातिज़ा बताए जाते हैं, एक का नाम जो है शौकत अहमद लोन है, दूसरा जो है नसीर अहमद लोन है। हालांकि मजीद जो है इसके लिए कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया है, क्योंकि इसमें जो है 10 दिन रखे गए हैं, एक टीम भी तश्कील दी गई है जो अपना रिपोर्ट जो है पेश करेगी 10 दिन के बाद, और 10 दिन के बाद ही पता चलेगा कि इसमें जो है कितनी सच्चाई है और क्या ये वालिदैन ने जो शिकायत की है क्या ये हकीकत है या कुछ और है। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक जो है इसकी जो है छानबीन पूरी करके जो है किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी साहिल, आपसे भी ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह के वाक़ात की अगर बात करें तो कुपवारा में इस तरह के वाक़ात पहले भी पेश आए हैं। हाल ही में एक खबर सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी जिसमें दिखाया गया था कि एक जो मदरसा का जो बच्चा है उस पर भी जो है इसी तरह का तशद्दुद किया गया था और उससे भी काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंची थी, उस पर भी कार्रवाई की गई थी। तो आज जो कार्रवाई की गई है इस पर एक कमेटी भी तश्कील दी गई है, तो कमेटी में कौन कौन लोग हैं और कब तक का उनको टाइम दिया गया है हतमी रिपोर्ट देने के लिए? जी बिल्कुल, इसमें जो है एक टीम जो तश्कील दी गई है वो जागियों के सरबराही में जो है तश्कील दी गई, क्योंकि ये जो है जोन कालपुरा में आता है, ये पुरनमल इलाका जो है वहाँ पर जो है कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पर, क्योंकि ये दूर दराज इलाका है। तो इस लिहाज से इसमें जो है 10 दिन इसलिए रखे गए हैं क्योंकि वहाँ पर जो टीम जाएगी वहाँ पर जो है ग्राउंड पे जब लोगों की बात सुनेगी, बच्चों की बात सुनेगी, तब जाके ये पता चलेगा। इसलिए इसमें जो है 10 दिन की गैप रखी गई है। हालांकि ये भी बताया जाता है, जिस तरह से मैंने कई उस्तादों के साथ जो है बात की है, वहाँ पर उस्तादों का ये मानना है कि वहाँ पर जो है ये जो उस्ताद है ये वहाँ के लोकल है और बच्चे भी जो है लोकल है। हो सकता है इसमें जो है कुछ आपसी रंजिश भी बताया जा सकता है, क्योंकि वह लोकल उस्ताद और लोकल बच्चे हैं। हो सकता है कुछ घरेलू हिसाब भी इसमें हो सकता है, क्योंकि अभी ये साफ तौर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमें कोई इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन ज़रा से हमें पता चला है कि शायद ही कुछ आपसी तनाज़ा है जिसकी बिना पर जो है उस्तादों की शिकायत यहाँ पर की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल शमीम तमाम तफसीलात देने के लिए। तो नाज़रीन किराम, साहिल शमीम हमारे साथ कुपवारा से जुड़े हुए थे जो इस हवाले से मज़ीद तफसीलात दे रहे थे। आपको बता दें कि कुपवारा में ये वाक़या पेश आया है जहाँ पर कारपोलर पनिशमेंट के चलते एक शिकायत पर जो है काम करते हुए आपको बता दें कि 2 उसातिज़ा को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, और इस हवाले से एक 4 रुकनी टीम को भी जो है तश्कील दी गई है, कमेटी तश्कील दी गई है और वो 10 दिन के अंदर अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करेगी। और इस हवाले से मज़ीद जानकारी जो है हमारे नुमाइंदे समीम पहुंचा रहे थे। चलिए नाज़रीन किराम, अब त्राल की बात करते हैं। आपको बता दें कि त्राल में आज म्युनिसिपल कमेटी जो है उनकी तरफ से आज लोगों को जो डस्टबिन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। आपको बता दें कि म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने बरनतल इलाके में स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम के तहत लोगों में कूड़ेदान तकसीम किए हैं। इस मौके पर कमेटी के चेयरमैन मंजूर अहमद खान ने स्कूली बच्चों को साफ सुथराई और आसपास के माहौल को साफ रखने की जानकारी दी। खान ने बताया कि इनकी कोशिश है कि
इलाके को साफ सुथरा रखा जाए और इसके लिए वक्तन फवक्तन जो है वो इस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं और इसके तहत हमने देखा कि वादी भर में इस तरह के प्रोग्रामात का इनेकाद किया जाता है जहां पर लोगों को अपने माहौल को साफ सुथरा रखने की तरगीब दी जाती है और उन्हें इसके साथ साथ जो है तरबियत भी दी जाती है किस तरह से हम अपने माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं और किस तरह से जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से डिस्पोज करना है। ये सारी चीज़ें जो है इनको बताई जाती हैं और इसी के हिस्से के तहत आज त्राल में भी इस तरह का एक प्रोग्राम पेश आया जहां पर आज कूड़ेदान जो है वो लोगों को डिस्प्यूट किए गए। इस हवाले से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं वो मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए सबसे पहले वो देखते हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम प्रोग्राम साइज बार गई आज ब्रमतल वार्ड प्राइमरी स्कूल गई आज स्कूलस मज अत हो लुकन मेज डस्टबिन सतन हो कत डस्टबिन कर इस्तेमाल हो कत मज त्रा तो उदर कत मज त्रा अंद पक कत साफ थवन पन मोहल कत पन वार्ड कत थो साफ बचन तौर ये स्कूलस मज गई तमन बचन तमझे तुम वनो सो पन्न गरकन पानस पन्न स्कूलन मज थो सो सफाई पन्न गरकन वनो कत थो साफ सुथर ये मज तुम बचो तुत पान बयान कत सफाई थो मकसद पन टाउन त्राल कत थोन साफ। नाज़िर-ए-किराम अब इस के बाद बात करते हैं सेहत अफजा मुकाम गुलमर्ग की, क्योंकि हाल ही में गुलमर्ग में जो है ताज़ा तरीन बर्फबारी की वजह से वहाँ पर अगरचे सर्दी में इजाफा देखने को मिला है और इसके साथ साथ दर्ज हरारत जो है वो नीचे गया है, मौसम में तब्दीली देखने को मिली है और उसके साथ साथ जो सयाहत से जुड़े हुए लोग हैं उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि सयाहती मुकाम गुलमर्ग या इसके आसपास के जो इलाके हैं टनमर्ग हो या बाकी इलाकाजात हों वहाँ पर जो सयाहत से जुड़े हुए लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि टूरिस्ट जो हैं वो वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं जिसके चलते उनके कामकाज में जो है मज़ीद इजाफा होता है। और इस हवाले से आपको बता दें कि आज वहाँ पर यानी गुलमर्ग और टनमर्ग के जो इलाके हैं वहाँ पर सयाहों का अच्छा खासा रश देखने को मिला है और उनके चेहरे पर खुशी भी देखने को मिली है। वहीं इस पेशे से जुड़े हुए लोग यानी सयाहत से जुड़े हुए लोग जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए और उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। और इस हवाले से हमारे साथी की ये खास रिपोर्ट देखते हैं, वो मजीद तफसीलात भी इस हवाले से दे रहे हैं। मेरा नाम है ध्रुवी और मैं अहमदाबाद से हूँ और हम लोग कल आए गुलमर्ग। कल से इधर स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल व्यू है और बहुत लोग हैं इधर। आप लोगों को इधर आना ही चाहिए। बाकी के लिए मेरा ये है कि आप लोग इधर एक बार तो आइए ही आइए, क्योंकि ये सच में स्वर्ग है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाय, मेरा नाम प्रेक्षा है, मैं अहमदाबाद से हूँ। यहाँ पे हम लोग अभी गुलमर्ग में हैं और यहाँ पे बहुत अभी स्नोफॉल हुआ है कल शाम को ही और अभी बहुत ही अच्छा मौसम भी बहुत बढ़िया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में अगरचे कल रात से ही बारिशों का न थमने वाला सिलसिला जारी रहा, वहीं सयाहती मुकाम गुलमर्ग के अफरोट और कंगडोरी में इस बार जो है अच्छी खासी बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई और बाहर से जो सयाह यहाँ पर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। अब उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में मौसम में चलिए नाज़िर-ए-किराम, इस खबर के साथ ही आज की स्पेशल रिपोर्ट का शुमारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।